गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? हैव यू ऑल completed your classwork notebook? So on coming Monday onwards we are going to have a unit test 1. Okay, already I had sent the timetable in our group also. Everyone please go through that, and on Monday I am going to give the portion blueprint, and revision also will start from Monday onwards only. Okay children, so today we are going to continue the lesson number 6 classwork notebook. So come, we'll see the classwork notebook. चलिए बच्चों, मैं आपको आज पान नज़र के जो क्लासवर्क नोटबुक है उसका कंटिन्यूएशन दे देती हूँ। फिर इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि असाइनमेंट सेशन में आपको ऐसे रेटिंग में भेज दूंगी करके, तो मैं उसे भी भेज देती हूँ। आप सब लोग उसको देखकर लिख लीजिए, ठीक है? तो हम लोगों को मंगलवार के दिन ऑनलाइन क्लास है, उसमें उस दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। मैंने आपसे पहले बताया था कि अनुच्छेद लेखन रहेगा और पैसेज कॉम्प्रहेंशन रहेगा करके। सो उन दोनों के लिए 8-8 मार्क होंगे बच्चों। तो सिर्फ अनुच्छेद लेखन में मैं 2 देती हूँ, तो उस दोनों में सिर्फ एक ही आप लोग पढ़िए, ठीक है? तो हम लोग मंडे से सोमवार से हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो मैं उसी दिन मैं आपको पोर्शन दे देती हूँ और ब्लूप्रिंट भी दे देती हूँ, ठीक है बच्चों? ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं बाकी का जो क्लास वर्क नोटबुक। आप लोगों ने सब लिख लिया ना? शब्दार्थ और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न. So very short answers. Up to this much we had completed, children. So today we are going to see the लघु उत्तर short answers. First question. छोटू के पापा चुनिंदा लोगों में से एक थे, कैसे? So here he is asking Chotu's father, he is a VIP. How he became a VIP? How? Because he is working there where that Surangnuma, that cave route, he is going there, and his office, his control room was there on the planet. Okay, so there he is working, which means he is a SVIP. So क्योंकि वे सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग कर सकते थे, उनके पास सिक्योरिटी पास भी था. Why? Because he is working there. Okay, he is working there in the cave route, and the next, even though he is having security pass also, so that's why we can imagine Chotu's father is a VIP. Next, second one. छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास कैसे हासिल किया? So this छोटू, how he got that father security pass? Can anyone? So on the day Chotu's father, he is having leave and he is taking rest in home, and this Chotu, he went and simply he took the only hiding and went and he took the security pass from his father. छुट्टी के दिन जब छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे, तब छोटू ने नजर बचाकर चोरी छिपी पापा की सिक्योरिटी पास हथिया लिया. So on that leave day, Chotu's father, he is taking rest in home. At that time, this Chotu, he went slowly and he took the security pass. Okay. Next, third question. छोटू के सुरंग में प्रवेश करते ही वहां क्या हुआ? So when this Chotu was entered in the cave, at that time, what it was happened? So what it was happened? Yes, छोटू ने सुरंग में प्रवेश करने के लिए बंद दरवाजे के खांचे में कार्ड डाला. So when he is entering in this that cave route, at first in the door, like as one swapping is there, like card swapping is there, so they have to enter that card. Okay, so in that he kept that card, so that card, it went inside. दरवाजा तुरंत खुल गया. After that card went inside, at the time the door was opened.
कार्ड पुनः उठाते ही दरवाजा बंद हो गया. After that, when he is collecting the card from the door, at the time immediately the door was closed. जगह जगह लगे निरीक्षक यंत्रों ने छोटू की तस्वीर खींच ली. So for each place they had arranged the security missions, no, which means robotic missions, I said. So that one they started taking the photo and they started taking the scanning of this छोटू. और सिपाही उसे पकड़कर घर छोड़ आए. So immediately the alert bells were also started ringing at that time, that soldiers, that so army soldiers will be there, no. So they came and they took Chotu and they gave the Chotu to Chotu's home. Okay, so this is the third question. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. छोटू के पिता ने छोटू को क्या समझाया? छोटू's father what he was make छोटू to छोटू's father, छोटू के पिता ने छोटू को क्या समझाया? So what he explained to छोटू's father. So with what this छोटू was understood. So छोटू के पिता ने छोटू को समझाते हुए कहा कि जहाँ वे काम करते हैं वे क्षेत्र जमीन के ऊपर है. So at first Chotu's father said, where I am working, he make him to understand this. Chotu father said, I am working there on the planet. वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में कोई जीवित नहीं रह सकता है. So he told, they normal people, they should not go there because they were unable to go. Why? Because now, so there the atmosphere is very different. So they nobody can live like that, he said. वे वहाँ पर खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाते हैं. If they want to go, which means this Chotu's father, remaining other members, if they want to go on the planet now, so they are wearing some special type of space suit. So from that they are getting the oxygen, and the atmosphere is different, which means warmness will be there, more warm. So that's why that space suit definitely they has to wear. स्पेस सूट से उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहती है. एज बिफोर आई सेड, wearing of the space suit they can get the oxygen frequently. So that's why they are wearing the space suit and they are going there. So these are the 4 question and answers. Okay children, everyone repeat with me. सब लोग मेरे साथ एक बार दोहराइए. ठीक है. छोटू के पापा चुनिंदा लोगों में से एक थे. कैसे? उत्तर, क्योंकि वे सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग कर सकते थे. उनके पास सिक्योरिटी पास भी था. फिर से, छोटू के पापा चुनिंदा लोगों में से एक थे. कैसे? उत्तर, क्योंकि वे सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग कर सकते थे. उनके पास सिक्योरिटी पास भी था. दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन. छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास कैसे हासिल किया? उत्तर, छुट्टी के दिन जब छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे, तब छोटू ने नजर बचाकर चोरी छिपे पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया. वन मोर टाइम. छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास कैसे हासिल किया? उत्तर, छुट्टी के दिन जब छोटू के पापा घर पर
आराम फरमा रहे थे, तब छोटू ने नजर बचाकर चोरी छिपे पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, छोटू के सुरंग में प्रवेश करते ही वहां क्या हुआ? उत्तर, छोटू ने सुरंग में प्रवेश करने के लिए बंद दरवाजे के खांचे में कार्ड डाला। दरवाजा तुरंत खुल गया। कार्ड पुनः उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। जगह जगह लगे निरीक्षक यंत्रों ने छोटू की तस्वीर खींच ली और सिपाही उसे पकड़कर घर छोड़ आए। वन मोर टाइम, छोटू के सुरंग में प्रवेश करते ही वहां क्या हुआ? उत्तर, छोटू ने सुरंग में प्रवेश करने के लिए बंद दरवाजे के खांचे में कार्ड डाला। दरवाजा तुरंत खुल गया। कार्ड पुनः उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। जगह जगह लगे निरीक्षक यंत्रों ने छोटू की तस्वीर खींच ली और सिपाही उसे पकड़कर घर छोड़ आए। फोर्थ क्वेश्चन, छोटू के पिता ने छोटू को क्या समझाया? उत्तर, छोटू के पिता ने छोटू को समझाते हुए कहा कि जहां वे काम करते हैं वे क्षेत्र जमीन के ऊपर है। वहां आम आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वहां का माहौल में कोई जीवित नहीं रह सकता है। वे वहां पर खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाते हैं। स्पेस सूट से उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहती है। वन मोर टाइम, छोटू के पिता ने छोटू को क्या समझाया? उत्तर, छोटू के पिता ने छोटू को समझाते हुए कहा कि जहां वे काम करते हैं वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। वहां आम आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में कोई जीवित नहीं रह सकता है। वे वहां पर खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाते हैं। स्पेस सूट से उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहती है। नेक्स्ट, दीर्घ उत्तर। पहला जो प्रश्न, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? So according to the story, on the Mars planet, so
maybe it was there before that living things, but now how it was spoiled, what could be the reason? So for that उत्तर, मंगल ग्रह पर भी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे. Actually on the Mars planet living things are, everyone are living on that planet only. परंतु धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा. But slowly the climate and weather condition, it started changing. Why? Because the sun rays are coming directly from the sun. Okay, so that's why the changes are came on the Mars planet climate. सूरज की उष्णता में परिवर्तन आने से मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया. So at that time the balancing of the nature, so that one is also it was spoiled. So that's why there पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा अन्य जीव जंतु इस स्थिति का सामना नहीं कर सके और नष्ट हो गए. So at that time these birds, animals, plants, trees, everything was they were unable to tolerate the climate. So every living thing are spoiled on that planet. छोटू के पिता के पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया. So छोटू's father's ancestors, they were faced this problem. Okay. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न. नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने का कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? So they had given the number 1 responsibility, number 2 is another responsibility, number 3 they are handling, no? So they all are what are the situation it came, so with that what are the advices they are giving and how that thing was solved. Okay, or क्यों? Why? Because नंबर 1 ने कहा कि इन अंतरिक्ष यानों में केवल यंत्र है. नंबर 1, he is a scientist, no? Yes, he is giving the advice. Number 1, he said actually from the spacecraft, inside the spacecraft only machines are there, और कोई मानव या जीव सवार नहीं है. So in that no human being is there and no animals are there. नंबर 2 ने अंतरिक्ष यान को बेकार कर देने में खतरा समझा. So number 2 is a scientist and he said we should not spoil that spacecraft. Suppose if we are spoiling that spacecraft, now definitely we are going to fall in trouble, like that he said. और केवल अवलोकन करने का सुझाव दिया, and he gave the advice only to observe that thing what it is doing. एंड नंबर 3 ने अपने अस्तित्व को छिपाए रखने का ही सुझाव दिया. सो नंबर 3 ही सेड हियर लिविंग थिंग्स आर देयर, दे आर लिविंग अंडरग्राउंड द planet, like that we should not inform to other planet people, like that he said. So this one we have to keep it like as a secret, like that the number 3 he advised. Okay children, so these are the 2 long answers. So everyone come and repeat with me. पहला जो प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वे सब नष्ट कैसे हो गया? उत्तर, मंगल ग्रह पर भी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, परंतु धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा. सूरज की उष्णता में परिवर्तन आने से मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया. पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव जंतु इस स्थिति का सामना नहीं कर सके और नष्ट हो गए. छोटू के पिता के पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया. वन मोर टाइम. इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? उत्तर, मंगल ग्रह पर भी लोग
जमीन के ऊपर ही रहते थे, परंतु धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज की उष्णता में परिवर्तन आने से मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव जंतु इस स्थिति का सामना नहीं कर सके और नष्ट हो गए। छोटू के पिता के पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने का कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर, नंबर 1 ने कहा कि इन अंतरिक्ष यानों में केवल यंत्र है, कोई मानव या जीव सवार नहीं है। नंबर 2 ने अंतरिक्ष यान को बेकार कर देने में खतरा समझा और केवल अवलोकन करने का सुझाव दिया। नंबर 3 ने अपने अस्तित्व को छिपाए रखने का ही सुझाव दिया। वन मोर टाइम, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर, नंबर 1 ने कहा कि इन अंतरिक्ष यानों में केवल यंत्र है, कोई मानव या जीव सवार नहीं है। नंबर 2 ने अंतरिक्ष यान को बेकार कर देने में खतरा समझा और केवल अवलोकन करने का सुझाव दिया। नंबर 3 ने अपने अस्तित्व को छिपाए रखने का ही सुझाव दिया। ओके चिल्ड्रन, सो